नमस्कार, आर के त्यागी, गाजियाबाद, एनसीआर, दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी नंबर चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। मिस्टर मूर्ति जी जो हैं उनका एक कम्युनिकेशन है, वो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। ये कह रहे हैं, इन्होंने भेजा है, UFU कैन नॉट बैक आउट फ्रॉम द MOU, IBMS कंप्लाई विद SCI ऑर्डर्स। ये देवपल्ली मूर्ति है। कहते हैं UFU कैन नॉट बैक आउट फ्रॉम द MOU, IBMS कंप्लाई विद SCI's पेंडिंग मोशन हियरिंग ऑर्डर्स लेस tantamount sub judice एंड बैंक चेन्नई राम शर्मा ने भेजा है इनको। और आगे कहते हैं इसमें, Respected sir, I would like to know one clarification. Every time computer generated date, how will change? Our case is 25/1/2024, then 13th February 2024। ये सिंगला जी वाले केस के बारे में कह रहे हैं। Whether registrar will change the date with somebody's instruction, it is happening several times. I doubt with someone is playing, no one will ask SC regarding दिस इशू। वाई नॉट आस्किंग एनी अंडर हैंड डीलिंग। ये नहीं लिखना चाहिए इन्हें, इसकी मैं निंदा करता हूँ। देवपल्ली जी आगे लिखते हैं, अंडर हैंड डीलिंग नहीं लिखना चाहिए। माय डियर श्री अय्यर गौरू, अय्यर है मिस्टर, उन्होंने इनसे पूछा तो इसको इस जवाब दे रहे हैं। द फॉलोइंग इज माई रिप्लाई टू योर अबाउट डाउट। इन्होंने डाउट जो क्रिएट करा ना, जिससे मैं कहता ही नहीं, इसको सब के बारे में बता रहे हैं। द फॉलोइंग इज माई रिप्लाई टू योर अबाउट डाउट। By and large, normally manipulations do take place. In certain specific cases, the bench hearing the case by themselves also may give short adjournment depending upon the urgency. In the rest of the instances, computer generated as per the program installed in the system. Notwithstanding all the above, the Chief Justice, being the Chief Roster Master, vests with the authority either to prepone or postpone any case at any point of time, depending upon the exigencies brought to his lordship's notice. That is how our Singla case was preponed to 20 January 20. Then also when the motion hearing orders were passed directing the IBA to submit report on pension updation consequent upon the government appointing a committee under the Rajya Sabha Act, which was effectively brought to the court notice. Simultaneously, it was also effectively followed up while handing over the memorandum personally to then CJI Sri N.V. Ramana Garu at Vijayawada on 25th December 2019. Incidentally, the case now again preponed 30th February 24 as against its original adjournment date 1 March 24। और इसने फिर डिटेल दी है, ये इस यहाँ क्लिक करके देखो, रिगार्ड्स एंड ग्रीटिंग्स, और नीचे यही इनका देवपल्ली जी हैदराबाद से लिख रहे हैं। तो एक तो ये था इसमें, एक और मैं इसमें बता देता हूँ आपको। एक सर्कुलर है, ऑफिस मेमोरेंडम है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है ये, और खान मार्केट 3rd फ्लोर लोकनायक भवन, खान मार्केट, न्यू दिल्ली का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनरी वेलफेयर, ऑफिस मेमोरेंडम। सब्जेक्ट क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग वेदर डिडक्शन टुवर्ड्स commutation are required to be made from family pension for remaining period
in case where the pensioners dies before the restoration of the committed pension regarding. ये क्या कहता है? In accordance with the Rule 5 of CCS Commutation of Pension Rules 1981, a government servant can commute for a lump sum payment of an amount not exceeding 40% of his pension. Further, in accordance with the Rule 10A CCCS Commutation of Pensions Rules 1981, the committed amount of the pension shall be restored on completion of 15 years from the date of reduction of the pension on account of commutation becomes operative in accordance with the Rule 6. Number 2. References representations have been received in this department seeking clarification whether the deduction towards commutation are required to be made from family pension for the remaining period in cases where the pensioner dies before the restoration of committed pension. Number 3. It is clarified that in such cases monthly committed amount of pension is not required to be deducted from the family pensions and family pensions shall be paid in full without any deduction in this regard. और ये इनके साइन है, चरणजीत सिंह तनेजा है, अंडर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के. अच्छा, इसका एक ये बता देता हूँ, लोग बाग पूछते रहते हैं अगर कम्यूटेशन किसी ने ले रखा है 15 साल तक कटता रहेगा वो, लेकिन बीच में अगर कोई डेथ हो जाती है किसी की पेंशन रखी तो फिर फैमिली पेंशन से नहीं कटेगा. लेकिन इसमें एक और भी बात है जो इसमें दे नहीं रखी, अगर 65 साल तक फुल पेंशन मिलती है उसे जो की तो, अगर उससे पहले वो एक्सपायर हो जाता है तो 65 65वें साल तक मतलब 65 साल क्रॉस करने तक जो कम्यूटेशन का पैसा कटता रहेगा, लेकिन 65 साल के बाद फैमिली पेंशन चालू होती है उसमें से नहीं कटेगा. ये मैं इसको थोड़ा सा बता भी देता हूँ हिंदी में. कुछ साथी बार बार पूछते हैं कि 15 वर्ष की कम्यूटेशन पीरियड में यदि पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो क्या फैमिली पेंशन को पूरी पेंशन विदाउट कम्यूटेशन डेडिकेशन का हकदार है? जी हाँ, फैमिली पेंशन को पूरी पेंशन मिलेगी, कुछ नहीं कटेगा. डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल लेटर डेटेड 25 अक्टूबर 22 लेटर एंड क्लोज. पत्र यह भी स्पष्ट करता है कि यदि सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु पेंशन कम्यूटेशन की तारीख बहाल होने से पहले यानी कि 15 साल पहले हो जाती है तो पेंशन का परिवर्तित मूल्य पारिवारिक पेंशन से नहीं काटा जाएगा, यानी कि पेंशन का भुगतान किया जाएगा. एक महत्वपूर्ण पत्र है. सभी सेवानिवृत्त व्यक्ति को इस पत्र की नवीनतम उपयोग के साथ रखना होगा और जीवन साथी को भी शिक्षित करना होगा. ये है, तो ये मैंने आपको बता दिया है. इस संबंध में इम्पोर्टेंट अपडेट है, वैसे तो पता होना चाहिए लेकिन नहीं पता होता कई बार, तो इसलिए बताया है. और नमस्कार साथियों, थैंक यू. भारत माता की जय. वंदे